Hello student, I am Nidhi Srivastav, Assistant Professor in NIT Pharmacy Institute, Greater Noida. So today I will deliver the lecture on metal ion indicators, masking and demasking reagents, estimation of magnesium sulfate and calcium gluconate. Metal ion indicators is related to the complexometric titration. I have already discussed about the complexometric titration in my last lecture. So, metal ion indicator used in complexometric titration because complexometric titration is used for the titration for the metals. So, which indicator used in complexometric titration is called metal ion indicators. It is also known as PM indicator. So, introduction is a metal ion indicator is a substance that changes color when it binds to metal ions in solution. Metal ion indicator tend to polyprotic complexing agent. Metal ion indicator कलर चेंज करता है जब वो मेटल से बाइंड होता है और साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी यूज़ होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज़ यूज्ड एज अ टाइट्रेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन लाइक EDTA. Okay, so metal ion indicators change the color when it binds to the metals. Okay, xylenol orange is used for the cobalt titration. Xylenol orange is the example of metal ion indicator and it is used the titration of cobalts. Cobalt is a metal. To carry out metal cation titration using EDTA, it is almost always necessary to use a complexometric indicator to determine when the end point has been reached. So, metal ion indicator basically used for the complexometric titration, and in complexometric titration it binds the metal and change the color due to the formation of complex agent. Common indicators are organic dyes such as fast sulfone black, iriochrome black T, iriochrome red B, pattern reader or murex-side. These are the common indicators which use as a metal ion indicator. Metal ion indicators basically use as a dye. Metal ion indicator बेसिकली डाई की तरह यूज़ होते हैं और इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं. सोलोक्रोम ब्लैक टी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मेटल आयन इंडिकेटर. इरियोक्रोम ब्लैक टी इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडर्न ब्लैक टी. अ complexometric titration in complexometric indicator is an ionochromic dye that undergoes a definite color changes in the presence of specific metal ions. It forms a weak complex with the ion present in the solution, which has a significantly different color from the form existing outside the complex. So, complexometric indicator और metal ion indicator एक ionochromic dye होते हैं जो definite color change करते हैं in the presence of a specific metal ion. किसी स्पेसिफिक मेटल आयन की प्रेजेंस में ये एक डेफिनेट कलर चेंज करते हैं. इट फॉर्म अ वीक कॉम्प्लेक्स और ये फॉर्म करते हैं वीक कॉम्प्लेक्स को विद द आयंस विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंटली different color. Complexometric indicator are also known as PM indicator. These are the example metal ion indicator. There are different indicators used in different experiment to avoid the unwanted chemical reactions and outcomes. Metal ion indicator यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेटल्स. जैसे जैसे हम मेटल्स चेंज करते हैं तो
इंडिकेटर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन में देखते हैं कि अगर हम पीएच हमारा जो एसिड बेस का पीएच जिसके अकॉर्डिंग मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर कुछ और यूज़ करते हैं। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन हम पीएच इंडिकेटर कुछ और यूज़ करते हैं। तो एसिड बेस के इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द पीएच चेंज होते हैं। ऐसे ही मेटल आयन इंडिकेटर भी जैसे जैसे हम मेटल्स चेंज करते हैं तो इंडिकेटर भी चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। मेथड्स टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन EDTA टाइट्रेशन आर, तो फर्स्टली हम देखेंगे metal ion indicator. A metal this compound must bind metal less strongly than EDTA. यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई इंडिकेटर है जिसके साथ मेटल आयन लगा हुआ, जैसे मैग्नीशियम आयन है इंडिकेटर के साथ, एंड देन it binds with EDTA and form the magnesium EDTA which is in colorless. मैग्नीशियम इंडिकेटर मतलब मेटल आयन इंडिकेटर जब है तो वो रेड कलर के फॉर्म में है। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से बाइंड होगा मींस EDTA से, तो जो मेटल इंडिकेटर है वो अपना अलग होके मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जो कलरलेस फॉर्म में होगा, और इंडिकेटर जो होगा वो ब्लू कलर फॉर्म करेगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल आयन इंडिकेटर विद EDTA कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और जब हम मेटल आयन इंडिकेटर एज अ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो यहाँ आपके 3 टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। मर्करी इलेक्ट्रोड विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट टू पोटेंशियल, ग्लास pH इलेक्ट्रोड, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। सो दिस इज द कॉमन रिएक्शन विच इज़ यूज्ड for the metal ion indicator. Now the some examples of the metal ion indicator. These are the indicator which is used as a metal ion indicator. These are the element which is used for the reaction and used as a metal, or the color with metal ion and without metal ion. So this is pyrocatechol violet इंडिकेटर है, मेटल आयन इंडिकेटर। ये जो यूज़ होता है इन एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, BiCd, कोबाल्ट, आयन, मैग्नीज, जिंक। ओके, और जब ये मेटल के साथ होता है, मेटल आयन के साथ होता है तो ब्लू कलर फॉर्म करता है, और जब डिसोसिएट होके मेटल EDTA से बाइंड हो जाता है और ये इंडिकेटर विदाउट मेटल आयन हो जाता है तब ये येलो कलर में हो जाता है। इसी तरह से डायथायाजोन यूज़ होता है जिंक के लिए, और जब ये मेटल के साथ होता है तो रेड कलर के फॉर्म में होता है, और मेटल के विदाउट मेटल ग्रीन वॉयलेट कलर शो करता है। इरियोक्रोम ब्लैक टी, दिस इज़ यूज फॉर द कैल्शियम, कैडमियम, मर्करी, मैग्नीशियम, लेड, जिंक, एंड इट प्रोड्यूस with metal ion red color and without metal ion blue color. Okay, next chalcone carboxylic acid, it is used for the calcium in the presence of significant magnesium, and it produce red color with metal ion, and without metal ion it produce blue color. Hydroxynaphthol blue, it is used for the calcium and magnesium, it produce red color with metal ion, and without metal ion it produce blue color. Murex-side, it is used for the cobalt, copper, nickel, and it produce yellow color with metal ion, and without metal ion it produce violet color. Pan, it is used for the cadmium, copper, zinc, and it produce red color with metal ion, and without metal ion pen produce yellow color. Phthalene purple, it is used for the barium, calcium, cerium, and it produce purple color with metal ion, and without metal ion it produce colorless, it is in colorless. Tyrone, it is used for the FeSO4, and it produce blue color with metal ion, and without metal ion it produce yellow color. Now xylenol orange,
It is used for many types of element, many types of metal, and it produce red color with the metal ion and without metal ion yellow कलर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मेटल आयन इंडिकेटर होते हैं, जो मेटल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका कलर कुछ और होता है। जैसे ही मेटल जब EDTA से बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो जो इंडिकेटर होते हैं वो डिफरेंट कलर के हो जाते हैं। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि जब मैग्नीशियम और इंडिकेटर, मतलब मेटल आयन इंडिकेटर जब साथ में थे, मेटल आयन और इंडिकेटर, तो ये प्रोड्यूस कर रहे थे रेड कलर, और जैसे ही EDTA के साथ मैग्नीशियम बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बना लिया तो इंडिकेटर ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो इस तरह से मेटल आयन इंडिकेटर वर्क करते हैं इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिए मेटल आयन इंडिकेटर के, और कैसे ये कलर चेंज करते हैं रिएक्शन में, ये भी देख लिया कि अगर ये मेटल आयंस के साथ होते हैं तो इनका कलर कुछ डिफरेंट होता है, जैसे ये मेटल से अलग होते हैं तो इनका कलर कुछ और हो जाता है। तो इस तरह से मेटल आयन इंडिकेटर वर्क करते हैं। नाउ मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। Masking and demasking agent is a very important topic for the complexometric titration. मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट का मतलब है, जैसे हम मास्क वर्ड होता है कि हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, और डीमास्क का मतलब होता है हम उस किसी प्रिवेंशन, जो प्रिवेंट की गई चीज़ है उसको डीमास्क कर रहे हैं। तो मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसलिए होता है कि जब रिएक्शन होती है मेटल्स की, तो उसमें कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं, जो मेटल आयन होते हैं, जो इंटरफेयरिंग होते हैं और रिएक्शन में इंटरफेयर करके रिजल्ट में एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें उनको मास्क करने के लिए मास्किंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है ड्यू टू द टाइम ऑफ द रिएक्शन। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, हम उसको, जो भी हमने मेटल आयन को प्रिवेंट कर रखा है, मास्क कर रखा है, उसको डीमास्क कर देते हैं। तो मास्किंग एजेंट इज अ रिएजेंट दैट प्रोटेक्ट some component of the analyte from the reaction with EDTA, and masking agent used to prevent one element from interfering in the analysis of another element। जैसे कि कोई एलिमेंट है, कोई मेटल आयन है जो दूसरे मेटल आयन की रिएक्शन को इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है, जो इंटरफेयर कर रहा है, तो उसके लिए हम मास्किंग एजेंट यूज़ करते हैं। ये एक टाइप के केमिकल्स ही होते हैं मास्किंग एजेंट, और ये भी हमें अकॉर्डिंग टू द मेटल्स ही यूज़ करने होते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका मास्किंग एजेंट एक स्पेसिफिक होगा। ऐसे डिफरेंट केमिकल्स के लिए डिफरेंट मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट होते हैं। फिर मास्किंग एजेंट, अगर हमने कोई केमिकल यूज़ किया है मास्किंग एजेंट में, तो उसको जो डीमास्क करने के लिए रिएजेंट यूज़ करेंगे या केमिकल यूज़ करेंगे, वो उसके लिए ही स्पेसिफिक होगा। तो ये मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट अपने अपने केमिकल के लिए स्पेसिफिकली होते हैं। डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं? डीमास्किंग एजेंट इज अ रिएजेंट दैट रिलीज ऑफ अ मेटल आयन फ्रॉम अ मास्किंग एजेंट। और ये क्या करते हैं? मास्किंग एजेंट को जिस हमने मेटल आयन को या जिस एलिमेंट को हमने प्रिवेंट कर रखा है, उसको डीमास्क कर देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं मास्किंग एजेंट के, जैसे KCN इज द एग्जाम्पल ऑफ मास्किंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड, अब हम देखेंगे ये किस मेटल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर सिल्वर, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक और अदर टाइप्स ऑफ मेटल। तो ये बहुत सारे मेटल्स के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स के लिए, इसीलिए इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं KCN को। और KCN में भी जो साइनाइड जो होता है, वो बेसिकली आपका मास्किंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मेटल है, कोई हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इनमें से। तो हमने एक जनरली ले लिया एक मेटल, और देख रहे हैं कि अगर हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसने मेटल को, CN ने मेटल को बाइंड करके अपना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया है। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन है, उसमें भी यही हुआ है। तो इस तरह से हम रिएक्शन करा के मास्किंग एजेंट जो होगा, वो आपके जो स्पेसिफिक मेटल है, जो इंटरफेरेंस का काम कर रहा है रिएक्शन में, उसको बाइंड कर लेगा और बाइंड करके प्रिवेंट कर देगा। और देन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, हम इसको बाइंड कर देंगे। अभी उसकी रिएक्शन भी देखेंगे।
तो KCN हो गया एज अ मास्किंग एजेंट जो यूज़ हो रहा है इतने सारे मेटल्स के लिए। नेक्स्ट है ट्राई इथेनोलामीन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई इथेनोलामीन और इट इज़ यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर FeAl एंड SN। तो ये 3 टाइप के एलिमेंट्स या मेटल्स के लिए यूज़ होता है और इसकी भी रिएक्शन ऐसी होगी, जो आपका जो भी मेटल होगा वो ट्राइथेनोलामीन से बाइंड होकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड टाइप का बना के उसको प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड इज़ यूज फॉर द NH4F और इट इज़ यूज्ड एज अ मास्किंग एजेंट। फ्लोराइड में आपका एग्जाम्पल है अमोनियम फ्लोराइड का एंड इट इज़ यूज्ड एज अ मास्किंग एजेंट फॉर Fe एंड Al टू गिव हेक्सा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमने फ्लोराइड में एग्जाम्पल लिया है अमोनियम फ्लोराइड का, जो एक मास्किंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है किसमें, Fe आयरन के लिए और एल्यूमिनियम के लिए, और इन लोगों से बाइंड होकर इनमें से जिस भी मेटल के साथ बाइंड होता है उसके साथ हेक्सा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। नेक्स्ट आता है जैसे F6 का होल थ्राइस या AlF6 का होल थ्राइस, इस तरह से। फिर आता है आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज़ यूज्ड एज अ मास्किंग एजेंट, क्योंकि जैसे हम ये देख रहे हैं KCN में Cn जो है वो बेसिकली आपका मास्किंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है। ट्राइथेनोलामीन में तो अमीन जो होगा वो टर्शरी अमीन जो है वो बेसिकली आपका मास्किंग एजेंट का वर्क करेगा। फ्लोराइड में हमने अमोनियम फ्लोराइड, क्योंकि हम मिक्सचर ही लेंगे तो फ्लोराइड आयन जो होंगे वो बेसिकली आपके मास्किंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। आयोडाइड में हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया, इसमें से आयोडाइड जो होगा वो बेसिकली मास्किंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो इट इज़ यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर मरकरी Hg टू गिव टेट्रा आयोडो कॉम्प्लेक्स। तो अगर मास्किंग एजेंट यहाँ पर हम यूज़ करा रहे हैं आयोडाइड में, तो ये मरकरी से बाइंड होके टेट्रा आयोडो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इस तरह से मास्किंग एजेंट की रिएक्शन होती है। मास्किंग एजेंट प्रिवेंट करता है उन मेटल्स के इंटरफेरेंस को जो रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या इम्प्योरिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी होती है जनरली कि जब हमने 3-4 मेटल्स हैं साथ में, उसमें से कुछ मेटल्स हैं जिनकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्योर हो सकता है। आपका टाइट्रेशन का प्रोसेस में कुछ इम्प्योरिटी कॉज हो सकती है, इसमें रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड पॉइंट सही से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। सो हम उन एलिमेंट्स को, उन मेटल्स को प्रिवेंट कर देंगे जब तक रिएक्शन चल रही है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसको हम डीमास्क कर देंगे। नाउ डीमास्किंग एजेंट्स आर एजेंट विच regain the ability of masked ion to enter the reaction with indicator and EDTA. Example, the masking by Cn, जैसे हमने Cn की मास्किंग, साइनाइड की मास्किंग देखी थी, तो जो साइनाइड की मास्किंग है वो कैन बी रिमूव्ड बाय मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक एसिड ऑन एडिशन ऑफ डीमास्किंग एजेंट। एंड तो यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे कि साइनाइड की मास्किंग जो है वो कैसे रिमूव हो रही है। मिक्सचर लिया है हमने फॉर्मेल्डिहाइड का, एसिटिक एसिड का, और इसको हम ऐड करेंगे जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा बाय द मास्किंग एजेंट के साथ, उसमें इसको ऐड कर देंगे तो साइनाइड जो होगा वो डीमास्क हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZnCN4 और जिंक इज लिबरेटेड एज एंड टाइट्रेटेड। उसके बाद जो जिंक होगा वो लिबरेट हो जाएगा और टाइट्रेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम मास्किंग एजेंट को डीमास्क कर सकते हैं। Now the complexometric titration are particularly useful for the determination of the mixture of different metal ions in solution। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं complexometric titration के कुछ एग्जाम्पल। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है estimation of magnesium sulfate। मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे एस्टिमेट करते हैं बाय द complexometric titration। तो मैग्नीशियम कैन बी easily determined by EDTA titration in the pH 10 against stereochrome black tea। तो मैग्नीशियम जो है उसको हम
ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू, EDTA के टाइट्रेशन के थ्रू। मतलब EDTA टाइट्रेशन आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ही होता है, क्योंकि हम पूरे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेन EDTA ही यूज़ कर रहे हैं एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जो आपका EDTA टाइट्रेशन है, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसमें हमें pH 10 रखना होता है, मोर बेसिक pH रखना होता है, तो pH हम 10 रखते हैं। और अगेंस्ट जो भी इंडिकेटर यूज़ होता है वो इरियोक्रोम ब्लैक टी होता है। तो यहाँ हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, pH एक स्पेसिफिक pH है, स्पेसिफिक इंडिकेटर है, क्योंकि इंडिकेटर का अपना सही मतलब मेन रोल है, और साथ ही साथ EDTA का भी अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो ये टाइट्रेशन हमें बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम को डिटरमाइन करते हैं बाय द EDTA टाइट्रेशन, और pH 10 सेट करते हैं, और इंडिकेटर यूज़ करते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी। देन कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं, अभी हम टाइट्रेशन देखेंगे, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो ईच ml ऑफ EDTA होता है 0.05 मोलर, वो आपका इक्वल होता है 0.01232 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के। ये कैलकुलेशन हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से इसके मोल्स निकल के आते हैं जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। देन materials required for the estimation of the magnesium sulfate, तो यहाँ हम देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लिया है 0.3 ग्राम। देन स्ट्रॉन्ग अमोनिया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है 6.75 ग्राम, और साथ में हमने 0.05 मोलर डायसोडियम इरिटेट जिससे हम टाइट्रेशन करना है वो प्रिपेयर किया। मॉडर्न ब्लैक सेकेंड मिक्सचर यूज़ किया, तो मिक्सचर भाई इंडिकेटर के फॉर्म में इसको जो प्रिपेयर करते हैं वो NaCl के साथ प्रिपेयर करेंगे। इक्वेशन द एसे ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट विद वाटर 7s2 इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन डिजिग्नेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम और यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म हो रहा है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो मैग्नीशियम आयन दे रहा है, साथ में आपका जो सोडियम है सोडियम H2X के साथ बाइंड हो रहा है, और सोडियम हाइड्रोजन हैलाइड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। देन प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर है वे एक्यूरेटली अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एंड डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एड to it 10 ml of strong ammonia ammonium chloride solution and titrate with 0.05 molar disodium ethylene diamine tetraacetate या फिर EDTA बोल सकते हैं, employing 0.1 gram of modern black second mixture as indicator until the pink color is discharged from the blue। तो जब तब तक हमें टाइट्रेशन करना है, तब तक हमें डायसोडियम इरिटेट ऐड करना है, जब तक कि पिंक कलर जो है वो पिंक कलर फॉर्म ना हो जाए ब्लू कलर से, क्योंकि रिएक्शन के टाइम में कलर ब्लू होगा, जब एंड पॉइंट डिटरमाइन होगा तो वो पिंक कलर में डिस्चार्ज होगा। ईच ml ऑफ 0.05 मोलर डायसोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड is equivalent to 0.0602 gram of magnesium sulfate. Now the standardization of 0.05 molar disodium iridate solution is, firstly weigh accurately about 0.8 gram of granulated zinc dissolved by gentle warming in 12 ml of dilute hydrochloric acid and 5 drop of bromine water. Boil to remove excess bromine, cool and add sufficient distilled water to produce 200 ml in a volumetric flask. Then pipette out 20 ml of the resulting solution into a flask and neutralize carefully with 2 normal sodium hydroxide. Dilute to about 150 ml of with distilled water, add to it sufficient ammonia buffer. The pH range is 10. To dissolve the precipitate and add a further 5 ml quantity in excess. Finally, add 50 gram of modern black second mixture and titrate with the disodium iridate solution until the solution turns green. Each
0.03269 gram of granulated zinc is equivalent to 1 ml of 0.05 molar disodium ethylene diamine tetraacetate. So, this is the standardization of the डायसोडियम ईडिटेट, क्योंकि डायसोडियम ईडिटेट का स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद ही हम इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं फॉर द टाइट्रेशन प्रोसेस. सो इस तरह से हम एस्टिमेशन करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का. नेक्स्ट हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट. कैल्शियम ग्लूकोनेट एक इंजेक्शंस के फॉर्म में होता है. इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H11O7 और रिलेटिव मॉलिकुलर मास होता है 448.4. सो केमिकल नेम होता है कैल्शियम डी ग्लूकोनेट मोनोहाइड्रेट 1:2 मोनोहाइड्रेट. डिस्क्रिप्शन वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है और पाउडर और ओडरलेस होता है. सॉल्युबिलिटी स्लोली सोल्यूबल होता है वाटर में, फ्रीली सोल्यूबल होता है बॉइलिंग वाटर में. एंड अगर इसको कूल वाटर में हम सॉल्यूबल करते हैं तो बहुत स्लो सॉल्यूबल होता है, लेकिन जैसे ही वाटर को थोड़ा वार्म करते हैं, हीट कराते हैं, तो ये ईजिली सॉल्यूबल हो जाता है. प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल होता है इन डिहाइड्रेटेड इथेनॉल आर इथेनॉल आर एंड ईथर में. और कैटेगरी जो है कैल्शियम सुक्रोज में आती है. स्टोरेज कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड बी केप्ट इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द light. The method called a complexometric titration is used to find the calcium content of milk, the hardness of water and the amount of calcium carbonate in various solid materials. तो जो भी complexometric titration में हम यूज़ करते हैं मेथड, कैल्शियम कंटेंट जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, वाटर में जो हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से उसको फाइंड आउट करने के लिए, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वेरियस सॉलिड मटेरियल्स में जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए उनका एस्टिमेशन करते हैं. द मेथड यूजेज आर अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड EDTA which forms a complex with calcium ions. EDTA stands for the ethylene diamine tetraacetic acid. Additional information: even in the absence of light, calcium gluconate is gradually degrade on exposure to a humid atmosphere, the decomposition being faster at higher temperature. तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइट की एब्सेंस और साथ में हायर टेम्परेचर को देख के देखना होता है. इसके लिए रिक्वायरमेंट्स बताई दी हैं कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर देन 102% होना चाहिए कैल्शियम ग्लूकोनेट में, कैलकुलेटेड एज मोनोहाइड्रेट. फिर इसके बाद इसके आइडेंटिटी टेस्ट आते हैं. तो आइडेंटिटी टेस्ट इस तरह से हैं: 20 mg/ml सोल्यूशन yields the reaction described under 2:1 general identification test as characteristics of calcium. To 1 ml of a 30 mg/ml solution add 1 drop of ferric chloride and a yellow color is produced. To 5 ml of a warm 0.1 gram ml solution add 0.7 ml of glacial acetic acid and 1 ml of freshly distilled phenylhydrazine. Heat on a water bath for 30 minutes, allow to cool and scrape the inner surface of the tube to induce crystallization. Collect the crystal, dissolve in 10 ml of hot water and add a small amount of charcoal. Allow to filtrate, cool and scrape the inner surface of the tube. A white crystalline precipitate is produced. Melting temperature and about 200 degrees Celsius with decomposition. Thank you.